Again, in this case, when u minus v is given, let capital U is u minus v, then find dou u by dou x and dou u by dou y, call it as phi1 and phi2, then find phi1 of z comma 0 and phi2 of z comma 0, and then remember this step number 4, that 1 plus I into f dash of z is phi1 z comma 0 minus I into phi2 of z comma 0, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करो, 1 plus I को कैंसिल करो या शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड पे, you will get analytic function f of z, right? एक एग्जांपल इसका भी हुआ है, find the analytic function of f of z in terms of z if u minus v is this, right? और एक होमवर्क दिया था, ट्राई किया सबने? होमवर्क होमवर्क ट्राई किया? आ रहा है सबको या उसको उससे स्टार्ट करें? बॉयज किसी ने भी नहीं किया? उसी से स्टार्ट करना है, ठीक है? एक मिनट, लेट मी राइट डाउन द क्वेश्चन। पेज नंबर 10 है, 11 से स्टार्ट करते हैं। The question is, if f of z is equal to u plus iv is analytic and u minus v is equal to e raised to x into cos y minus sin y, find f of z in terms of z. In terms of z, right? This is what the question, that to find analytic function f of z, right? Now in this case again u minus v is given, so अब हमको दोबारा से क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे we have f of z is equal to e raised to x. So again जो theoretical part है वो दोबारा लिखेंगे हम लोग, जो हर एक क्वेश्चन में लिखते हैं हम लोग, f of z, I into f of z, ये सब चीजें। So सबसे पहले तो f of z is nothing but u plus iv, then multiply it with I into f of z, that will be iu minus v, right? Next step is adding these two. We have 1 plus I into f of z is equal to u minus v plus I into u plus v. Now you call this as capital U plus I into capital V, right? Next step is find the part, since u यहाँ पे है u minus v, capital U is u minus v, और u minus v दिया है आपको e raised to x cos y minus sin y. Now you have to find according to the steps we have written, that find partial derivative of u with respect to x and with respect to y. So दो कैपिटल U बाय दो x फाइंड आउट करना है। विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये ब्रैकेट तो आपका कांस्टेंट है, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव होगा e रेज़ टू x, और cos y minus sin y as it is, right? Call it phi1 of xy, right? Then dou u by dou y with respect to y differentiate कर रहे हैं। When you are differentiating with respect to y, this e raised to x is a constant, so just differentiate this bracket. So e raised to x as a constant written as it is. What is the integration of derivative of cos y minus sin y, minus as it is derivative of sin y is cos y. Call this as phi2 of xy. Next step is 1 plus I into f dash of z. एक आप स्टेप कर सकते हो कि फाइंड phi1 of z, 0, phi2 of z, 0। मैं नेक्स्ट स्टेप में वो डायरेक्टली कर रहा हूँ। So 1 plus I into f dash of z is nothing but dou capital U by dou x minus I into dou capital U by dou y। ये अगर आपको याद भी नहीं रहा तो भी चलेगा, phi1 of z, 0 माइनस I इंटू phi2 of z, 0 भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। दैट मीन्स आपको यहाँ पे अभी x की जगह पे z पुट करना है और y की जगह पे 0 पुट करना है, और ये दो क्वांटिटी को पुट फाइंड आउट करके यहाँ पे पुट करना है। सो वी हैव 1 plus I into f dash of z
इज इक्वल टू phi 1 ऑफ z कॉमा 0 क्या होगा, e रेज टू z cos 0 minus sin 0 minus I into phi 2 of z comma 0 is e raised to z minus sin 0 minus cos of 0, right? Simplify करो इसको, this will be e raised to 0 cos 0 is 1 minus 0 minus I e raised to 0. अब अगर आप चाहिए तो e raised to z को टोटली कॉमन ले सकते हो, या अगर वैसे ही रखना है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. e raised to z into minus sin 0 is 0 minus cos 0 is 1 minus 1, right? So क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंप्लीफाई करते हैं अभी, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन बन जाएगा प्लस. सो यू हैव e रेज टू z माइनस i इंटू माइनस नहीं प्लस i इंटू e रेज टू z. यहाँ तक क्लियर हुआ कि सबको? बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग f of z, not f dash of z. So integrating on both sides, 1 plus I is a constant, so as it is, integration of derivative of f dash of z is f of z is equal to integration of this quantity, integration e raised to z into dz plus I integration e raised to z into dz. प्लस सी आपको ऐड करना है, अभी कर लो या बाद में कर लो, राइट? बट इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, e raised to z का e raised to z plus I into e raised to z. You can take out e raised to z कॉमन, so अंदर आएगा 1 plus I into e raised to z, राइट? प्लस सी आप चाहिए तो भी डाल दो, या प्लस सी पहले से लिखना है तो भी चलेगा, राइट? 1 plus I into e raised to z. बट आपको तो f dash of z, f of z चाहिए, 1 plus I की जरूरत नहीं है. So shifting f of z on right hand side, we have e raised to z 1 plus I divided by 1 plus I plus c. अगर आप यहाँ पे c डालते हैं तो भी चलेगा, या बाद में डाल दो, या फिर रहने दो, चलो ठीक है, डाला है तो डालने दो. तो ये आ जाएगा c अपॉन 1 प्लस आई. तो ये एक नया कांस्टेंट बनेगा, कॉल इट एज c डैश. और ये 1 प्लस आई गेट कैंसिल, सो f डैश ऑफ f ऑफ z इज e रेज टू z प्लस c डैश. दिस इज योर एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z. आया क्या सबको समझ में? यस सर. ठीक है. So this is all about finding the analytic function when u plus v or u minus v is given. अब इसमें कुछ डाउट है किसी को, कैसे करना है? तो याद आ गया, अभी समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है. So अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज हार्मोनिक फंक्शन. हार्मोनिक फंक्शन की डेफिनेशन हमने देखा था. व्हाट इज मीन बाय हार्मोनिक फंक्शन? हार्मोनिक फंक्शन याद नहीं है? एनी इक्वेशन और एनी फंक्शन विच सैटिस्फाइज the Laplace equation is known as harmonic function. बराबर? Any function of x y, I'm just reminding you, ये हो चुका है हमारा, डेफिनेशन हो चुकी थी, इस पे एग्जांपल बाकी थे हमारे. So any function of x and y which satisfies, which has continuous partial derivatives of the first and second order and satisfies Laplace equation del square phi is equal to dou square phi by dou x square plus dou square phi by dou y square is equal to 0 is called
harmonic function is called a harmonic function. आया समझ में? That means what? उसके first and second order partial derivatives जो है वो continuous होने चाहिए and moreover it must satisfy the Laplace equation del square phi equal to 0 is called harmonic function, right? अब आते हैं इस पे एग्जाम्पल पे. ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो हमारा जो पर्पस है दोनों फुलफिल कर पाए. To find an analytic function, example, if v is equal to, I'm continuing on next page. Example number 1. If v is equal to 3x square y plus 6xy minus y cube, show that v is harmonic. Show that v is harmonic and find the corresponding analytic function. Find the corresponding analytic function. ठीक है? So सबसे पहले we have to show that v is harmonic function. That means उनके first and second order partial derivative continuous होने चाहिए and moreover it must satisfy the Laplace equation. वो पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये analytic function find out करने के लिए जाएंगे. सबसे पहले v is given, v is 3x square y plus 6xy minus y cube. अब आप करना क्या है एक्चुअल में? एक्चुअल में आपको to show dou square v by dou x square plus dou square v by dou y square equal to 0. ये दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एंड बताना है कि इट इज नथिंग बट 0 दोनों का एडिशन होने पर. ठीक है? सो सॉल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएट विद v विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली. सो क्या हो जाएगा? विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 6x डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर होगा सिर्फ, क्योंकि x के विद रिस्पेक्ट टू हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो ये होगा 6x into y plus 6 into x का डेरिवेटिव है 1 into y minus y क्यूब का डेरिवेटिव 0 because differentiate with respect to x कर रहे हैं. then differentiate with respect to y कर लेते हैं, दोनों भी simultaneously कर लेते हैं. with respect to y करेंगे तो यहाँ पे होगा 3x square plus डेरिवेटिव ऑफ 6x into y का डेरिवेटिव है 1 minus y क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3y square. बराबर है क्या? नेक्स्ट स्टेप, अगेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये बन जाएगा डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x. अब यहाँ पे तो x है नहीं तो ये 0 बनेगा, यहाँ पे होगा 6y बिकॉज x का डेरिवेटिव 1 होगा. यहाँ पे वैसे ही करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियली. तो क्या हो जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये और ये 0 हो रहे हैं, यहाँ पे होगा -6y. अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, therefore एडिंग, तो क्या हो जाएगा? डो स्क्वायर v बाय डो x स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर v बाय डो y स्क्वायर इक्वल टू 6y माइनस 6y. दोनों का एडिशन कर रहे हैं लेकिन सब्ट्रैक्शन हो गया, 0 आ गया बिकॉज दोनों का साइन डिफरेंट है. और यही तो हमको करना था. वी हैव टू शो दैट दिस पार्शियल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y इक्वल टू 0. वो तो हो रहा है, और फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो आपके कंटिन्यूअस है बिकॉज वो पॉलिनोमियल के फंक्शन में है या फिर एक इक्वेशन है. बराबर आया समझ में? फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ कैसे हार्मोनिक है. therefore your conclusion will be v is harmonic function as it satisfies Laplace equation, harmonic function.
यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? Yes. ऑलराइट, अब आते हैं हाउ टू फाइंड द एनालिटिक फंक्शन। अब यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट दिया है, v दिया है, और आपको बोला है एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? हमने किया है इसको, राइट? vx दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ vx और vy फाइंड आउट कर लेंगे। vx को आप बोल देंगे vx को आप बोल देंगे psi2, vy को बोल देंगे psi1, और फिर x की जगह पे z, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, राइट? सो वी हैव vx इज इक्वल टू psi2 psi1 psi2 ऑफ xy, बराबर ना? psi2 ऑफ xy वो कितना है हमारा? vx है ये, वो है 6xy प्लस 6y, और vy है आपका psi1 ऑफ xy, दैट इज नथिंग बट, एम आई राइट? यही किया था हमने इमेजिनरी पार्ट के लिए। vy के लिए हम लोग psi1 बोलेंगे, vx के लिए psi2 बोलेंगे, बराबर है। अब आते हैं psi1 ऑफ xy, यानी ये पार्ट, इसमें दिस इज नथिंग बट 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3y स्क्वायर, बराबर है। अब आपको क्या करना है? वी पुट x इज इक्वल टू z, y इज इक्वल टू 0, तो psi2 ऑफ z कॉमा 0 कितना बन जाएगा? पुट x इज इक्वल टू z, y इज इक्वल टू 0, तो psi2 ऑफ z कॉमा 0 क्या होगा? 6x इंटू 0, 6z इंटू 0, 0 6 0, तो ये पूरा 0 बन रहा है। और psi1 ऑफ z कॉमा 0 कितना होगा? 3z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 3 इंटू 0 0, राइट? यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट f Yes. डैश ऑफ z इज इक्वल टू psi1 ऑफ z कॉमा 0 प्लस i इंटू psi2 ऑफ z कॉमा 0, राइट? बट दैट इज नथिंग बट psi2 तो आपका 0 आ गया है, सो रहेगा psi1 दैट इज 3z स्क्वायर प्लस 6z प्लस i इंटू 0, दैट इज f डैश ऑफ z। बट आपको तो f ऑफ z चाहिए, तो क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी हैव f of z is equal to integration of 3z square is 3z cube by 3 plus 6z square by 2 plus c, that will be nothing but 2 1s are 2 3s are, so आपका फंक्शन कितना आएगा? f of z is z cube plus 3z square plus c, this will be your final answer। आया क्या सबको समझ में? बॉयज क्लियर है? Yes, sir. ये पार्ट तो हम पहले भी देख चुके हैं, इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, सिर्फ न्यू था यहाँ पे हार्मोनिक कैसे बताते हैं वो, राइट? एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका हार्मोनिक फंक्शन फाइंड आउट बताना है उसको, और फिर आपको क्या करना है? वो फंक्शन का एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, एग्जांपल नंबर 3.2 show that the function u is equal to sin x cos hyperbolic y plus 2 cos x sin hyperbolic y थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, प्लस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4xy satisfies Laplace equation and find its corresponding analytic function। f of z equal to u plus iv, f of z equal to u plus iv। Solution
क्या बताना है कि u जो है वो इट satisfies the Laplace equation. इसी क्वेश्चन को you can frame it as show that u is equal to u is harmonic function. उसमें भी आप सेम सॉल्यूशन यूज करेंगे एंड फाइंड इट्स एनालिटिक करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन बोला है. ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. v थोड़ा लेंदी है, सॉरी u है यहाँ पे, u थोड़ा लेंदी है. sin x cos hyperbolic y plus 2 cos x sin hyperbolic y plus x square minus y square plus 4xy. राइट, फाइंड नाउ आपको फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और फिर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y को ऐड करना है. सो सबसे पहले dou u by dou x फाइंड आउट कर लेते हैं. व्हाट इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x? विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा. राइट, सो क्या होगा, sin x का cos hyperbolic y तो कांस्टेंट है, sin का डेरिवेटिव cos x cos hyperbolic y एज इट इज प्लस प्लस की जगह पे माइनस आएगा बिकॉज cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin, तो ये होगा -2 sin x sin hyperbolic y प्लस 2x, इसका 0 होगा प्लस 4xy का होगा 4y. राइट, देन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y बोला है. पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y बोलेंगे तो जहां पे y है उनका डेरिवेटिव होगा. राइट, सो कैसे होगा, sin x as it is, what is derivative of cos hyperbolic y? sin hyperbolic y plus 2 cos x as it is, sin hyperbolic y का डेरिवेटिव होता है cos hyperbolic y प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस y स्क्वायर का होगा -2y प्लस 4xy का होगा प्लस 4x. यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी आपको दोबारा से इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू x और y रिस्पेक्टिवली डिफरेंशिएट करना है सेकेंड ऑर्डर के लिए. नेक्स्ट लाइन, show that or find differentiate again, differentiate with respect to x. So ये बन जाएगा डबल डेरिवेटिव ऑफ u with respect to x. अब with respect to x करेंगे तो अगेन यहाँ पे और यहाँ पे डेरिवेटिव होगा. cos x का होता है माइनस sin x cos hyperbolic y as it is -2 sin की जगह पे होगा cos x sin hyperbolic y as it is प्लस 2x का हो जाएगा +2. बराबर है. नेक्स्ट इसको डिफरेंशिएट करते हैं. डो स्क्वायर u बाय डो y स्क्वायर इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे डेरिवेटिव होगा. कितना होगा ये, sin x as it is, डेरिवेटिव ऑफ sin hyperbolic y is cos hyperbolic y प्लस 2 cos x as it is, cos hyperbolic y का डेरिवेटिव होगा sin hyperbolic y माइनस 2y का डेरिवेटिव होगा -2. आया समझ में? अब आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है. सो एडिंग दीज टू वी हैव डो स्क्वायर u बाय डो y स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे डो स्क्वायर u बाय डो x स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर u बाय डो y स्क्वायर, दैट विल बी नथिंग बट माइनस sin x cos hyperbolic y. आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे ये कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन हम लोग लिख ले रहे हैं ताकि स्टेप्स कम ना पड़ जाए. sin hyperbolic y प्लस 2 प्लस sin x cos hyperbolic y प्लस 2 cos x sin hyperbolic y -2. अब आप देखेंगे तो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं, सब कैंसिल हो रहा है. इसका मतलब आपका आंसर कितना मिल रहा है, आपको 0 मिल रहा है. यही तो प्रूव करना था कि दैट u satisfies the Laplace equations. Therefore, u satisfies the Laplace equation. All of you agree? इसी को आप बोल सकते हैं कि u is harmonic function. हार्मोनिक फंक्शन. बराबर है क्या? आया समझ में सबको क्वेश्चन? अब आपको एक होमवर्क रहेगा Yes, sir. कि आपको इसका एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है. नाउ टू फाइंड, यहाँ पे होमवर्क रहेगा ये, टू फाइंड एनालिटिक फंक्शन f of z when u is given.
रियल पार्ट दिया है आपको, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करो एंड अकॉर्डिंगली रूल यूज करो। आ जाएगा सबका, कर लेंगे सब लोग ये होमवर्क। All right, so this is all about harmonic function. अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट। Harmonic conjugate means what? If f of z is equal to u plus iv is analytic function, then u is called harmonic conjugate of v and vice versa। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है, f of z is equal to u plus iv, u is real part, v is imaginary part, अगर वो एनालिटिक है तो u को आप बोलेंगे v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट और v को आप बोलेंगे u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट। u is हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v, v is हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। इस तरह से होगा, राइट। नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं? देखो इसमें क्वेश्चंस वही आते हैं जो हमने प्रीवियस में देखे हैं कि आपको u दिया था और बोला था कि फाइंड द इमेजिनरी पार्ट, एंड सिमिलरली v दिया था और आपको बोला था कि रियल पार्ट फाइंड आउट करो। वही यहाँ पे स्टेटमेंट बस चेंज करेंगे वो क्वेश्चन में कि इफ द रियल पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज u इज इक्वल टू सो एंड सो, देन फाइंड इट्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट। या फिर आपको बोला जाएगा कि इफ the analytic function f of z's imaginary part v is this, then find its harmonic conjugate। इसका मतलब क्या होता है? अल्टीमेटली u दिया है और आपको v फाइंड आउट करना है, या v दिया है और आपको u फाइंड आउट करना है, यही है इसका मतलब। तो यानी प्रोसीजर सब कुछ सेम रहेगा, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्डिंग चेंज कर देंगे। वो आया समझ में? तो ये भी पार्ट हम लोग कर चुके हैं, बस उसको नया नाम मिल चुका है कि अगर u दिया है तो आप v फाइंड आउट करेंगे और v दिया है तो u फाइंड आउट करेंगे, और क्वेश्चन होगा कि फाइंड द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u या हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v। आ जाएगा फिर सबको बॉयज? यस सर। ओके, सो इस पे कोई क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोग पहले ही कर चुके हैं। बस आपको नया वर्डिंग या फिर नया नाम मिला है इसको, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ठीक है, अब आते हैं हमारे ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी, लास्ट टॉपिक पे, ऑर्थोगोनल ट्रैजेक्टरी पे। 11:40 हो चुका है। एक लास्ट टॉपिक ही बचा है ना इसका। ठीक है, इसको हम लोग फिर अभी नेक्स्ट लेक्चर